Epistasis is a type of gene interaction and it is non-allelic gene interaction, or you can say it is intergenic gene interaction, where two different genes present at different loci are interacting in such a way that they are producing different type of phenotypes, and ultimately Mendelian ratio gets modified. The typical dihybrid ratio of Mendel was 9:3:3:1, but due to different type of gene interaction, this typical dihybrid ratio gets modified. And now we will study what is epistasis. Epistasis term consists of two words, epi plus stasis, meaning standing over. मतलब कि दो जीन्स हैं, अलग अलग लोकाई पर प्रेजेंट है, और जब एक जीन दूसरे जीन के फिनोटाइप या उसके एक्सप्रेशन को मास्क कर देता है, छिपा देता है, then this process या this effect is called epistasis. One gene masks the effect of other gene. तो मान सकते हैं जैसे suppose there are two genes A and B. A जीन B जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर रहा है, छिपा रहा है. Then the gene which is masking the effect of other is called epistatic gene. यानी वह जीन जो दूसरे के एक्सप्रेशन को मास्क कर रहा है, छिपा रहा है, that gene is called epistatic gene. And the gene whose expression is masked by the other gene is called hypostatic gene. यानी वो जीन जिसका इफेक्ट छिप रहा है वो कहलाता है हाइपोस्टैटिक जीन. ए जीन ने बी जीन के एक्सप्रेशन को मास्क किया, then it is epistatic gene, और बी जीन जिसका इफेक्ट मास्क हो गया वो हुआ हाइपोस्टैटिक जीन. अब इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि किस तरह से एपिस्टैटिक जीन काम करते हैं और टिपिकल डायहाइब्रिड रेशियो को चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं. एपिस्टैसिस मे बी ऑफ टू टाइप डिपेंडिंग अपॉन whether the gene is in dominant form or it is in recessive form. यानी दो जीन हैं A और B, जिनमें A एपिस्टैटिक जीन है और B हाइपोस्टैटिक. तो अगर A डोमिनेंट फॉर्म में है इस तरह से और B के इफेक्ट को मास्क कर रहा है, then it is called dominant epistasis. और यदि ये रिसेसिव फॉर्म में है और B के इफेक्ट को मास्क कर रहा है तो इसको बोलते हैं रिसेसिव एपिस्टैसिस. तो एपिस्टैसिस के दो टाइप हो गए, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, और दोनों ही कंडीशन में जो रेशियो है वो अलग अलग होगा. डोमिनेंट एपिस्टैसिस में मेंडेलियन रेशियो मॉडिफाई होता है 12:3:1, जबकि रिसेसिव एपिस्टैसिस में ये रेशियो मॉडिफाइड होता है 9:3:4, जबकि टिपिकल डायहाइब्रिड रेशियो 9:3:1. तो इस तरह से डोमिनेंट और रिसेसिव एपिस्टैसिस में अलग अलग मेंडेलियन अलग अलग मॉडिफाइड रेशियो मिलते हैं. द क्लासिकल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डोमिनेंट एपिस्टैसिस इज बार्ले सीड कोट कलर. यानी बार्ले के सीड कोट का कलर किस तरह से दो एपिस्टैटिक जीन डिसाइड करते हैं. There are two different genes B and Y which are controlling seed coat color in barley. Capital B is responsible for black color and its recessive allele small b is responsible for white color. Similarly, capital Y is responsible for yellow color and its recessive allele small y is responsible for white color.
or you can say no color develops, that's why seeds are white. Here also no color develops, that's why seeds are white in color. So there are two different genes which are interacting, B and Y. In case of epistasis, B and Y, B is producing black color and Y is producing yellow color. When both the dominant alleles are present, then both genes express them fully, but color developed by B is so intense, so fast that it masks the effect of Y. यानी ब्लैक कलर Y की वजह से बनने वाले येलो कलर को मास्क कर देता है, इसी की वजह से सारे सीड्स का कलर ब्लैक दिखाई देता है. There is a big difference between epistasis and inhibitory gene. In inhibitory gene, one gene does not let the other gene to express, यानी एक जीन दूसरे जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देता है, जबकि epistasis में both genes express them, but the effect of one gene is so strong that it masks the effect of other gene. जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्लैक कलर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो Y एक्सप्रेस होने के बाद भी उसको मास्क कर ले रहा है या उसको दिखाई नहीं दे रहा है. This is the example. A cross is made between black seed coat color of barley and yellow seed coat color of barley. These are parents, black in color, and this is yellow in color. These are gametes, capital B, small b, capital Y. और जब इनका क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में सारे ही सीड कोट का कलर ब्लैक होगा, बिकॉज both the alleles are present in dominant form. कैपिटल B भी प्रेजेंट है और कैपिटल Y भी प्रेजेंट है, तो B भी अपना एक्सप्रेशन दे रहा है जिसकी वजह से ब्लैक कलर आ रहा है, और Y भी अपना एक्सप्रेशन दे रहा है जिसकी वजह से येलो कलर आ रहा है. लेकिन the effect of B is so intense, so fast that Y is not able to express, or you can say we cannot detect the presence of Y, जिसकी वजह से हमें येलो कलर दिखाई नहीं दे रहा है, तो डोमिनेंट कलर दिखाई दे रहा है, दैट इज ब्लैक. तो F1 में जितने भी सीड्स होंगे उन सभी सीड कोड का कलर ब्लैक होगा. अब जब हमने F2 जनरेशन रेस की, F1 की सेल्फिंग की, तो 4 कॉम्बिनेशंस मिले. 9 सीड्स में दोनों 9 सीड्स ऐसे थे जहां पर कैपिटल B और कैपिटल Y दोनों प्रेजेंट है, तो यहां पर सीड्स का कलर होगा ब्लैक, सीड कोड कलर ब्लैक. दूसरी सिचुएशन यानी 3 जाइगोट ऐसे मिले जहां पर कम से कम एक डोमिनेंट अलील Y प्रेजेंट है, जबकि B जीन रिसेसिव फॉर्म में होगा, तो यहां पर ब्लैक कलर डेवलप नहीं होगा, केवल Y प्रेजेंट है, इसीलिए इनका कलर होगा येलो, क्योंकि Y का इफेक्ट है येलो कलर. थर्ड सिचुएशन में 3 जाइगोट ऐसे मिले जहां पर कैपिटल B प्रेजेंट है, जिसकी वजह से कैपिटल Y प्रेजेंट हो या स्मॉल y प्रेजेंट हो, सीड्स का कलर ब्लैक ही होगा, बिकॉज B इज मास्किंग द इफेक्ट ऑफ Y. और लास्ट सिचुएशन में एक जाइगोट ऐसा मिला जहां ना कैपिटल B प्रेजेंट है ना ही कैपिटल Y प्रेजेंट है, तो वहां पर कोई भी कलर डेवलप नहीं हुआ, जिसकी वजह से इन जाइगोट का कलर होगा या इन सीड्स का कलर होगा व्हाइट. तो टोटल कॉम्बिनेशन हुआ 9 + 3 12, यानी 12 सीड्स ब्लैक, 3 सीड्स येलो and 1 seed is white. Black, yellow and white.
So the modified ratio is 12:3:1. So this is all about of dominant epistasis. In dominant epistasis, dominant allele of one gene is masking the effect of other gene. आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, इनहिबिटरी जीन से ये अलग है, दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन एक का इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो दूसरे को हाइड कर ले रहा है, जिसकी वजह से वो हमें दिखाई नहीं देता है. Thanks for watching. If you like my video, hit the like button and subscribe my channel. Thank you.